Hello everyone, this is Aditya Verma. I welcome you all to Eclipse classes. As we are studying chapter digestion and absorption, in last some lecture we have already discussed about mouth, oral cavity, pharynx, esophagus, stomach, or in last lecture we saw about a small intestine, and this small intestine is divided into three part, that is duodenum, jejunum or ileum, and we saw that this ileum open into large intestine. So in this lecture we will discuss about large intestine and anus. So first of all we will discuss about large intestine. This pinkish color structure, as we can see in the diagram, is large intestine, and this large intestine is also known as large bowel. So it is a tube-like organ that is connected to a small intestine at one end and the anus at other. Clearly we can see in the diagram this large intestine is connected at the ileum region of a small intestine in one region and at the anus at other region. The name large intestine is due to large diameter which is 4 to 6 सेंटीमीटर. जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन होता है उससे हमारा लार्ज इंटेस्टाइन का डायमीटर बहुत ज़्यादा होता है, डेट इज़ 4 to 6 सेंटीमीटर. डेट इज़ वाई इट इज़ नॉन एज लार्ज इंटेस्टाइन. ओके, और हमारा लार्ज इंटेस्टाइन इज ectodermal in origin, and the size of large intestine is approx 1.5 to 1.75 मीटर लॉन्ग. और स्मॉल इंटेस्टाइन का हमने देखा था साइज कितना होता है, अप्रॉक्स 5 मीटर लॉन्ग. नाउ वी विल सी द wall of large intestine. It is made of 4 layer: serosa, muscularis, submucosa and mucosa. This serosa layer is the outermost layer of large intestine, and inside this serosa muscularis layer is present. This muscularis layer is also known as muscular layer or muscle layer. It is distributed in two layers: longitudinal muscle layer and circular muscle layer. This longitudinal muscle layer is present outside and this circular muscle layer is present inside, and inside this muscle layer submucosa is present. Okay, this submucosa layer is made of connective tissue, and this contain lymph or blood vessels and some nerve fibers, and inside this mucosa layer is present. It is the innermost layer, and inside mucosa goblet cells are present. These goblet cells secrete mucus, and these are the opening of crepes. Now we will see the parts of large intestine. There are three parts of large intestine. First one is the cecum, second one is colon, and the third one is the rectum. As we see in the diagram, this region is the cecum and all these region are the colon, and this small region is rectum. First we will see about cecum. It is spirally coiled 6 सेंटीमीटर लॉन्ग. ओके, ये स्पायरली coiled होता है और ये इसके साइज 6 सेंटीमीटर होता है. Its posterior end is present as a blind sac. Okay, in abdominal cavity called vermiform appendix. This is the vermiform appendix. This vermiform appendix is vestigial in human being. ये हमारे बॉडी में ये वेस्टिजियल होता है, क्योंकि इसका जितना बेनिफिट नहीं होता है उससे अधिक इसका नुकसान होता है. बेनिफिट इसका यही होता है कि इसमें लिम्फेटिक टिश्यू प्रेजेंट्स होते हैं. ओके, और इसका अगर हम नुकसान की बात करें तो इसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है, जिसको हमको सर्जरी करके रिमूव कराना पड़ता है इस अपेंडिक्स को. और आजकल तो फॉरेन कंट्रीज़ में जैसे ही न्यू बेबी का बॉर्न होता है वैसे ही इस अपेंडिक्स को काट के निकाल दिया जाता है. But in herbivores animal,
इट इज़ फंक्शनल, हेल्प्स इन सेलुलोज डाइजेशन। जो ऐसे एनिमल्स होते हैं जो सूखे घास पतवार खाते हैं जिसमें सेलुलोज होता है, उसमें ये हमारा अपेंडिक्स सेलुलोज का डाइजेशन करता है। तो हम ह्यूमन बींग तो सेलुलोज रिच फूड खाते नहीं हैं कि हम ये सेलुलोज का डाइजेशन करें। पहले के ह्यूमन बींग जो होते थे वो खाते होंगे सेलुलोज, तो उनमें वो ये हमारा अपेंडिक्स फंक्शनल था। लेकिन टाइम टू टाइम लोगों ने सेलुलोज ऐसे ये सब खाना बंद कर दिया, सो ये धीरे धीरे हम में नॉन फंक्शनल हो गया। एंड द सीकम इन ह्यूमन इज कंसर्न्ड विथ पासेज ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। ओके, एज वी नो स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, फूड का डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन होता है। तो ऐसे फूड जिसका डाइजेशन ना हो पाया होता है वो कहाँ पे पास होते हैं, सीकम में आ जाते हैं, और इन सीकम से पास करके उनको कोलोन में भेज दिया जाता है। ठीक बात। तो अब देखेंगे हम कोलोन रीजन को। सो कोलोन इज एक्सटेंडेड फ्रॉम सीकम। इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 1.3 मीटर लॉन्ग। तो ये हमारा कोलोन जो है सबसे लंबा रीजन होता है लार्ज इंटेस्टाइन का, डेट इज़ 1.3 मीटर लॉन्ग। इट इज़ डिफ्रेंशिएटेड इनटू 4 पार्ट्स, डेट इज़ असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन और ये पेल्विक और सिग्मोइड कोलोन। As we can see in the diagram, these are the ascending colon, these are transverse colon, this region is descending colon, and this one is the sigmoid colon। और कोलोन में क्या होता है, एक स्पेशलाइज स्ट्रक्चर पाया जाता है, डेट इज टेनिया कोलाई और हस्ट्रा। ये जो है हमारा, ये जो येलो कलर का हम देख पा रहे हैं क्या है हमारा, ये टेनिया कोलाई है। ये मिडिल पार्ट में प्रेजेंट होता है हमारा कोलोन का। और ये जो हस्ट्रा होता है ये डायलेटेड सैक होता है, पॉकेट होता है जो कि टेनिया को कवर करता है। अब फंक्शन देखते हैं इसका क्या होता है कोलोन का। तो कोलोन हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम अनडाइजेस्टेड फूड, सॉल्ट्स एंड विटामिन्स। ओके, तो ये क्या करता है, जो अनडाइजेस्टेड फूड हमारा सीकम से पास होके कोलोन में गया उनमें से ये वाटर का एब्जॉर्प्शन करता है, मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन करता है और उनमें से सॉल्ट्स का एब्जॉर्प्शन करता है, फिर उसको सॉलिड वेस्ट में कन्वर्ट कर देता है। पानी का एब्जॉर्प्शन हो गया तो वो सॉलिड वेस्ट ही हो जाएगा, और उस सॉलिड वेस्ट को हम क्या कहते हैं, फिकल कहते हैं, फिकल मैटर। ओके, और वन इम्पोर्टेंट लाइन इज ऑल्सो मेंशन हियर, दैट इज some bacteria are present in colon which synthesize vitamin B12 and vitamin K. Okay, now we will see the rectum. As we can see in this diagram, this region is the rectum. It is single small dilated sac like structure. Okay, इट इज़ कंसर्न्ड विथ स्टोरेज ऑफ फिकल मैटर। जो हमारा कोलोन रीजन में फिकल मैटर का फॉर्मेशन हुआ है वो का क्या होता है, उसका रेक्टम में स्टोरेज होता है। ठीक बात। रेक्टम एड स्ट्रॉन्ग स्फिंक्टर मसल्स। ओके, इन इट्स वॉल, जो इसका रेक्टम का वॉल होता है इसमें स्ट्रॉन्ग स्फिंक्टर मसल्स प्रेजेंट होते हैं। वो क्या काम करते हैं कि एनल कैनाल को और एनस को वो क्लोज करके रखते हैं, जबकि डिफिकेशन का प्रोसेस नहीं होता है। तो मतलब जब फीकल मैटर को बाहर नहीं निकालने का प्रोसेस होता है तब एनल कैनाल और एनस को ये बंद करके रखता है, स्फिंक्टर मसल। नाउ वी विल सी द फंक्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। First is they absorb water, salts, electrolytes and bile from undigested food and convert them into solid waste। हमने ये देख लिया है पहले ही। Second one is the forms and store fecal matter। कोलोन रीजन में fecal matter का फॉर्म्स होता है
और कहाँ पे स्टोर होता है, रेक्टम में। ओके, नाउ थर्ड फंक्शन इज कैरीज आउट डिफिकेशन, जो हमारा फीकल मैटर है उसको बाहर निकाला जाता है। फोर्थ फंक्शन इज द एब्जॉर्ब विटामिन्स लिबरेटेड बाय बैक्टीरिया, इसको भी हम देख लिए कौन कौन से बैक्टीरिया विटामिन्स का फॉर्मेशन करता है, विटामिन्स B12 and vitamin K. Okay, now we will see the anus and anal canal. This is the anus. Anus is the terminal inferior opening of alimentary canal. This is the opening of alimentary canal, terminal inferior opening. It is guarded by two sphincter. First one is the internal anal sphincter, which is a smooth muscle that is involuntary, and external anal sphincter that is a skeletal muscle which is voluntary. Okay, and this anus is connected to rectum through anal canal, which is about 3 centimeter long. This region is the anal canal. सो यहाँ पे हमारा लार्ज इंटेस्टाइन और एनस का टॉपिक फिनिश हो चुका है। इफ़ यू एंजॉय दिस वीडियो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड शेयर दिस वीडियो इन योर ग्रुप एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन so that you can get the notification of new video. Thank you so much.